Hello and welcome in another lecture on Marxism. In this lecture, we will be discussing Louis Althusser and his theory of. Okay, so first of all, let's see some biographical detail of Louis Althusser. Biographical details are not much important for your examination, but for a better understanding, you must know about some biographical details. So, first of all, Louis Althusser was born in 1918 in the month of October and died in 1990. Also, in the month of October, dates are different. And he is a French Marxist philosopher. Means it may be asked that from which country he belongs to. And he was a French writer, Marxist philosopher, and he was born in Algeria. Birthplace is also asked of some theorists like Foucault and Pratt. And thereafter, Althusser is commonly referred as a structuralist Marxist. Why? Because he has applied the structural concepts, theories over Marxism, and he went to equal normal superior. शार्ट में इसको and equal normal. This is the name of a school where he went first as a student and studied, and thereafter he was appointed there as a teacher, assistant professor, and he there in this ENS he spent about 35 years until 19 in 1980 he left Ecole Normal Superior. So remember the name Ecole Normal Superior ENS and designation as structural Marxist and his birthplace in Algeria, year 1980, died in 90, a French Marxist philosopher. One of his most important works is Reading Capital, and other important works are for Marx and Ideology and Ideological State Apparatus, in which in this work is the theory of interpolation has been discussed in an elaborate manner, and this concept appears in other works too, but in his work Ideology and Ideological State Apparatus, he has discussed his theory in detail and elaborated. So let's move ahead over his theory of interpolation. First of all, let's come to the term interpolation. The term interpolation defines the ways in which the subject of an ideology are placed in false position of knowledge regarding themselves. दिस ये जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पर जो आपको ये दिख रही है इसको इसलिए मैंने इसलिए मेंशन किया है बिकॉज one question has been asked about interpolation and this is the exact answer and exact the line and wording which has been used in the exam पेपर. तो यहाँ पर ये इंटरपेलेशन का मीनिंग पूछा था. यहाँ पर इंटरपेलेशन को क्या डिफाइन कर रहे हैं? दैट इज द टर्म इंटरपेलेशन डिफाइंस द वेज sorry in which the subjects of ideology. First thing, that interpolation is a technique of ideology, a subject of ideology are placed in false positions of knowledge रीडिंग themselves सॉरी रिगार्डिंग themselves. अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट कौन एक्चुअली इन मैटर ऑफ आइडियोलॉजी generally the subject is human being, the citizen of any country. You can simply understand that the subject is here the human being, the citizen.
तो यहाँ पर आइडियोलॉजी जो है क्या करती है, उस सब्जेक्ट को, जो सिटीजन है, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑफ आइडियोलॉजी है, उसको फॉल्स पोजीशन ऑफ नॉलेज में रखा जाता है। किसके रिगार्डिंग? रिगार्डिंग देमसेल्व्स, मींस रिगार्डिंग द सब। क्लियर? तो यहाँ पर एक बात आपको समझ, एक्चुअली में ये कहना क्या चाहता है कि इंटरपेलेशन है एक्चुअली टू इंटरपेलेट। टू इंटरपेलेट मीन्स टू मोटिवेट themselves to feel something wrong as right। स्टार्ट में अब इसको जरा समझने की कोशिश करें अगर हम लोग कि इंटरपेलेशन एक्चुअली है क्या। Interpellation actually can be associated with the term that is hyper reality and post truth too। एक्चुअली इंटरपेलेशन क्या है? वो सारे तौर तरीके हैं जिनके थ्रू सब्जेक्ट को ये फील कराया जाता है दैट इज द गवर्नमेंट, द लीडिंग पर्सनालिटी इज highly concerned with the goodwill of the subject. For example, all the governments interpolate the people। कैसे? हर एक गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे सपोज दैट इंडिया की बात करते हैं, हमेशा एक ही कंडीशन में जो गवर्नमेंट होती है वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है। ठीक है, जो विपक्ष होता है वो गवर्नमेंट को रिजेक्ट करने की कोशिश करता है, उसकी कमियां दिखाने की कोशिश करता है। और वही गवर्नमेंट जब विपक्ष में होती है तो उसी तरीके के तौर तरीकों को वो भी जो है अपोज किए रहती है। फॉर एग्जांपल अभी जरा देखिएगा कि अभी पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बड़ा जो है एक बवाल चल रहा है, दैट इज, और उसमें आपको खूब देखने को मिला होगा कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो 60-70 रुपए का डीजल पेट्रोल था। उस टाइम में बीजेपी ने क्या किया था? प्रोटेस्ट किया था। अभी क्या है, 100 रुपीज के आसपास में है, तब कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है। ठीक है? बात समझ रहे हैं कि नहीं? और यहाँ पर बीजेपी खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस जो है वो उस पर अटैक करने की कोशिश कर रही है। तो जो बीजेपी यानी जो गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट है, वो खुद को जो जस्टिफाई करने की कोशिश करती है, किस लिए? फॉर द कॉज ऑफ वेलनेस ऑफ द सब्जेक्ट। यानी कि ये वो तरीका है जिससे आसानी से अ, जनता पर शासन किया जा सकता है, उनको अपने फेवर में लिया जा सकता है। तो दैट इज इंटरपेलेशन। तो इंटरपेलेशन इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द नोशन ऑफ आइडियोलॉजी। ये किससे रिलेटेड है? आइडियोलॉजी से रिलेटेड है। अच्छा, अब यहाँ पर आइडियोलॉजी क्या है ये भी समझ लेना चाहिए कि आइडियोलॉजी है क्या। आइडियोलॉजी को आइडियल से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, जब हम मार्क्सिज्म में इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो आइडियोलॉजी का मीनिंग है, वो आइडियोलॉजी सिंपल सी इतनी सी बात कहती है कि व्हाट इज इन प्रैक्टिस, द वैल्यूज विच आर इन प्रैक्टिस, द सिस्टम, द रूल्स ऑफ सोसाइटी विच आर इन, दैट इज आइडियोलॉजी। मीन्स वो सारे चीजें जिसको सोसाइटी करेक्ट मानती है, दैट इज आइडियोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर तो जो आइडियोलॉजी है, ठीक है, आइडियोलॉजी को एस्टैब्लिश करने का एक बहुत बड़ा टूल है। सपोज दैट कोई सोशल रूल है, कोई सोशल आइडियोलॉजी है, वो क्यों एस्टैब्लिश होगा? वो इसीलिए एस्टैब्लिश होगा जब उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लिए लोगों को सहमत कर लिया जाए, लोगों को जो है समझा दिया जाए दैट इज इट इज फॉर द गुड ऑफ द, ठीक है, तभी वो क्या है, आइडियोलॉजी सक्सेस है, तभी उस आइडियोलॉजी को लोग फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल भाई किसी गवर्नमेंट का चुनाव किसी ने क्यों किया? जनता ने किसी गवर्नमेंट का चुनाव क्यों किया? बीजेपी का चुनाव क्यों किया? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ये बात लोगों को समझाने में सफल रहे दैट कि वो इंडिया को बेटर बना देंगे, वो इंडिया को विश्वगुरु बना देंगे। बना पाए ना बना पाए वो एक अदर अदर चीज है, लेकिन उन्होंने ये बात जनता को समझा दी कि भाई मैं कर सकता हूं, ये नहीं कर पाया। ठीक है,
उनकी आइडियोलॉजी जो है वो सब्जेक्ट में सेट हो गई। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जनता है, ठीक है। जनता ने उस आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया, उसको सेट कर लिया, उसको समझ लिया, ठीक है। वो माइंड पर उस चीज को सेटिंग बनाने में सफल हुए और जनता ने उनको फॉलो किया, बात खत्म। तो ये जो इंटरपेलेशन है वो किसी आइडियोलॉजी को स्टैब्लिश करने का बहुत बड़ा टूल है। इसी के थ्रू अब आगे इसको चलेंगे तो ये जब एंटोनियो ग्राम्सी पढ़ेंगे तो उनसे भी कोरिलेट होगा उनका जो हेजेमनी है। तो हेजेमनी के लिए भी इंटरपेलेशन जरूरी है। हेजेमनी जो है उसको भी पाने के लिए इंटरपेलेशन की जरूरत पड़ती है, बिना इंटरपेलेशन हेजेमनी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटरपेलेशन है, एक्चुअली इंटरपेलेशन यहाँ जो मार्क्स ने यूज किया, तो मार्क्स के सेंस में जो कंपनी है, जो फर्म है, जो कैपिटलिस्ट है, वो क्या करता है, इंटरपेलेट करता है वर्किंग क्लास को। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में तो वो कर रहा है कि जितना लेबर का प्रोडक्शन है उससे कम ही कास्ट उसको दे रहा है, बट ही ट्राइज टू शो, he tries to make the laborer believe that he is thinking for the good of the laborer. He is concerned for the good of the laborer. That is interpellation. यानी कि जैसे कैपिटलिस्ट क्लास है, जो बिजनेस ओनर है, वो समझाने की कोशिश कर ले लेबरर को कि हाँ वो जितना उसको पेमेंट दे रहा है वो बहुत ज़्यादा दे रहा है, एंड दैट इज फॉर हिज गुड, एंड ही इज ऑलवेज कंसर्न विद हिज गुड, ठीक है। तब ये क्या है, इंटरपेलेशन, ठीक है। सेम चीज फिर इसी को किस पर लागू किया गया, गवर्नमेंट पर लागू किया गया, ठीक है। और ये हर एक सोसाइटी में जहां भी हेजेमनिक कंडीशन होंगी वहां पर ये चीजें लागू होंगी। तो गवर्नमेंट के ऊपर भी क्या है, इंटरपेलेशन। किसी भी सोसाइटी पर, किसी भी कंट्री पर, किसी भी समुदाय पर जो है रूल करने के लिए इंटरपेलेशन की जरूरत पड़ती है। यानी कि किसी भी जनता को, किसी भी सब्जेक्ट को बाई फोर्स बहुत टाइम तक रूल नहीं किया जा सकता है, बट बाय इंटरपेलेशन एनी सोसाइटी, एनी मास कैन बी रूल्ड विदाउट विदाउट एनी टाइप ऑफ वायलेंस, विदाउट अ सिंगल ब्लडसेड, ठीक है। बिना ब्लडसेड के, बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी फोर्स के, इंटरपेलेशन के थ्रू किसी भी कंट्री पर, किसी सोसाइटी पर, किसी भी समुदाय पर जो है रूल किया जा सकता है। दैट इज इंटरपेलेशन। अब आई होप इंटरपेलेशन समझ आ गया, और नहीं समझ आया तो आप कमेंट में जरा लिखिए। सिंपल सा इंटरपेलेशन इतनी सी बात है कि बातों को तोड़ मरोड़ करके कुछ तरह से फॉल्सली प्रेजेंट करना कि लोग बिलीव कर लें दैट इज दिस इज फॉर द गुड। यही बात फर्स्ट ऑप्शन में लिखी गई, जो फर्स्ट पॉइंट हमने दिया है। द टर्म इंटरपोलेशन डिफाइंस द वेज in which subjects of an ideology are placed in the false position of knowledge regarding themselves। इसीलिए false word का यूज यहाँ पर किया गया है, बिकॉज की आइडियोलॉजीज ऑलवेज ट्रू नहीं होती, ठीक है, और ऑलवेज फॉर गुड नहीं होती, बट लोगों को ये मानने पर जो है मजबूर कर दिया जाता है। ये उनको बिलीव, उनका सिस्टम, बिलीफ सिस्टम सेट कर दिया जाता है। जैसे एक बिलीफ सिस्टम हम लोगों का अपना और भी है, जिसकी हम मानते हैं दैट इज जो गोरी चमड़ी वाले हैं, सपोज दैट जो फॉरेनर्स हैं, फॉरस ब्रिटिशर्स, अमेरिकन्स, ठीक है, सो कॉल्ड वाइट, वो क्या है, इज सुपीरियर देन द ब्लैक रेस, ठीक है। और कॉलोनाइजर्स आर सुपीरियर देन कॉलोनाइज्ड। आगे हम लोग जब पोस्ट कॉलोनियल पढ़ेंगे वहां इस चीज को समझेंगे। तो जो भी रूल करने का तरीका है, ये माइंडसेट बनाने का तरीका है, दैट इज कोई आइडियोलॉजी दिमाग में सेट, ठीक है। और जब आइडियोलॉजी दिमाग में सेट हो गई, तब वो सब्जेक्ट कभी भी रूलिंग क्लास के अगेंस्ट नहीं जाए। अगर आइडियोलॉजी सेट नहीं है, तब वो रूलिंग क्लास के अगेंस्ट जाएगा, रेबल होगा, और थोड़ा सा रूल करना प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सपोज दैट अगर जो वर्किंग क्लास है फैक्ट्री का, वो संतुष्ट नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो
फर्म का मालिक है, जो फैक्ट्री का मालिक है, उसके अगेंस्ट रिबेल करेगा, काम सही नहीं करेगा, काम छोड़ देगा। ठीक, दैट इज इट इज द प्रोसेस बाय विच वी एनकाउंटर अ कल्चर्स और आइडियोलॉजीज वैल्यू एंड इंटरनलाइज देम। अच्छा, यहाँ एक चीज ध्यान रखना है कि जितना इसका रिलेशन आइडियोलॉजी के साथ है उतना ही रिलेशन कल्चर के साथ है, बिकॉज कल्चर इज आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी इज कल्चर, बिकॉज कल्चर इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ आइडियोलॉजी। ठीक है, जो बहुत सारी आइडियोलॉजीज एक साथ मिल जाती हैं तो उसको हम कल्चर कह लेते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा सिस्टम। आगे कहते हैं एसोसिएटेड टू अ पर्टिकुलर विद द वर्क्स ऑफ फ्रेंच फिलोसोफर लुई अल्थूसर। और इंटरपेलेशन का जो स्पेशल यूज है, स्पेशल एसोसिएशन है, वो लुई अल्थूसर ने इसका खूब यूज किया और इसको पॉपुलराइज किया। आगे बढ़ते हैं। इनका जो ऐसे वर्क है कि दैट इज आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus। ठीक है, उसमें सॉरी स्टेट apparatus जो वर्क है उसमें इन्होंने दो टाइप के जो है सोसाइटी जो बनी होती है वो दो तरीके के जो है apparatus से बनी होती है, जिस एक को ISA कहते हैं, दूसरे को RSA कहते हैं। ISA क्या है? आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus है, और जो RSA है उसको कहते हैं रिप्रेसिव स्टेट apparatus। ठीक है, जो आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus है वो एक्चुअली में इंटरपेलेशन है। ठीक है, और जो रेप्रेसिव स्टेट apparatus है वो एक्चुअली में रूलिंग फोर्सेस है। ठीक है, आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus क्या कहता है कि भाई आइडियोलॉजी को थोप करके, आइडियोलॉजी को माइंड में सेट करके जो है इजिली रूल किया जा सकता है। जबकि दूसरा जो स्टेट apparatus है जिसको रेप्रेसिव स्टेट apparatus कहते हैं, इसमें पुलिस फोर्स आ गई, आर्मी आ गई, रूल्स आ गए, लॉ आ गया। ठीक है, मीन्स जिससे लोगों में डर बनाया जा सके, तो उससे क्या है कि एक वायलेंस के थ्रू भी रूल किया जा सकता है। तो ISA बिलोंग्स टू द प्राइवेट डोमेन and refer to private institutions like family, church, also the media and politics। अच्छा, इनका क्या रिलेशन है? सपोज दैट जो सेम सिचुएशन में बता रहा हूँ, फैमिली, फैमिली क्यों है? बिकॉज आइडियोलॉजी सेट है। ठीक है, चर्च पर हम बिलीव करते हैं, हम मीन्स क्रिश्चियंस बिलीव करते हैं, हम लोग मंदिरों पर बिलीव करते हैं, मस्जिदों पर बिलीव करते हैं, धर्मगुरुओं पर बिलीव करते हैं, बिकॉज आवर आइडियोलॉजी इज सेट। ठीक है, और उस आइडियोलॉजी के अगेंस्ट हम नहीं जा पाते हैं। ठीक है, तो ये जो उस आइडियोलॉजी को सेट करने का प्रोसेस है, ठीक है, जो सेट हो गई तो आइडियोलॉजी है, लेकिन उस आइडियोलॉजी को हमारे माइंड में सेट करने का जो प्रोसेस है, जो तौर तरीका है इंटरपेलेशन। और इंटरपेलेशन क्या है? टाइप ऑफ आइडियोलॉजिकल स्टेट। क्लियर? और RSA जो है वो क्या है? पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, लाइक पुलिस, मिलिट्री, लॉ एंड ऑल अदर गवर्निंग बॉडी। ठीक है, तो उनमें क्या है कि एक डर के वजह से चीजें होती हैं, और आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus जो है वो साइकोलॉजिकली काम करता है, उसमें वायलेंस की कोई गुंजाइश होती नहीं। Interpolation describes the process by which ideology embodied in major social and political institution, that is ISAs and RSAs, constitute the very nature of individual subjects' identities, the process of hailing them in social interaction। ठीक है, पूरे का एक जो निचोड़ है वो यही है कि जो स्टेट apparatuses हैं, ठीक है, जिसको ISA और RSA मिलकर के बनाते हैं, उन्हीं का एक ऐसा एम्बॉडीमेंट है, एक आइडियोलॉजिकल एम्बॉडीमेंट है जो सब्जेक्ट को इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है सोसाइटी में आइडियोलॉजीज को फॉलो करने की कंसर्न कर लेते। क्लियर? नेक्स्ट राइटर जो है वो है एंटोनियो ग्राम्सी। उनको भी हम अलग वीडियो में बात करेंगे। ऐसा क्यों हम करेंगे मैंने आपको बताया था, ताकि आपको रिवीजन में पर्टिकुलर राइटर चाहिए तो आपको आसानी से पर्टिकुलर थिंकर, पर्टिकुलर राइटर मिल जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट में। थैंक यू कनेक्टिंग।